Assalamu alaikum everyone. Hopefully you all are fine and safe. This is Ms. Ariba Fatma and I am here with a new topic which is industrial development. We will talk about in the context of Pakistan about industrial development and for this we have to move about the next slide. It is about the industrial sector is the base of economic development. Beta, as in the previous session, I told you about agricultural development and also conclude it that it is the first largest sector which will help our economy to earn the GDP. So, in this way, industrial sector is the second largest sector in our economy, which provide us GDP, which is about 25%. Okay, so it comprises of large to middle scale manufacturing, mining and quarrying, construction, electricity and gas distribution industrial sector. Okay, in manufacturing, cotton yarn and cotton cloth is the leading sector, followed by food processing industries largely based on indigenous raw material. Engineering sector in Pakistan is engaged in manufacturing cement and sugar plants, industrial boilers, chemical, petrochemical plants and equipment, construction equipment and power, transmission tower, textile related engineering, automotive, etc. Okay, so these are the companies or sectors which involve in the industrial sectors which provide us the large amount of GDP. They are helpful to earn large amount of GDP for our economy. So I'm moving to the principal industries of Pakistan. They are the first one is textile industry, second is cement industry, third one is ready-made garment industry, fourth is woolen industry, the next one is jute industry, and the next one is engineering goods industry, paper and board industry, fertilizers industry, and automobile industry. So I will explain all these industries separately. So first one is textile industry. Historically, Pakistan's textile industry and cloth sectors has always been a major contributor to the foreign exchange earner and still contributes. As you know, that in Pakistan, a huge quantity of cotton has been producing from since many last decades. So our textile industry is very prominent in international market, and we exports a huge quantity of textile products to the various countries. So there are the achievements related to the textile industries are fourth. It is our textile industries is the fourth largest grower of cotton आफ्टर यूएसए चाइना एंड इंडिया. ठीक है, तो हमारा पाकिस्तान जो है वो कॉटन को प्रोड्यूस करने में उसको ग्रो करने में जो है फोर्थ नंबर पे टॉप फोर्थ पे जो है वो स्टैंड करता है आफ्टर किसके यूएसए के चाइना एंड इंडिया के. इट इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन. ठीक है, यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा कॉटन जो है वो कंज्यूम होती है, थर्ड नंबर पे इसकी जो है वो रैंकिंग है. इट इज द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स. ठीक है, इसकी जो रैंकिंग है वो थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर में आती है कि ये थर्ड लार्जेस्ट बिगेस्ट लार्जेस्ट जो है वो एक्सपोर्टर है ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स प्रोडक्ट. And it is also the second largest supplier of cotton yarn with 26% shares in international market. Oh, दैट्स मीन कि ये जो है इसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द इंटरनेशनल मार्केट इट इज अबाउट 26%, विच इज वेरी लार्ज फॉर इन द परसेप्शन ऑफ अ सिंगल कंट्री, है ना. और इसके अलावा जो है इट इज द सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कॉटन यार्न in the world. Okay, so the product which we offer as a country of Pakistan, these are the wool fabrics, power loom products, scarves, blankets, shawls, hand embroidered shawls, textiles products, handicrafts, etc. Okay, so over 3 million farmers out of the 5 millions are involved in cultivation of this group like cotton. कॉटन को जो प्रोड्यूस करने हैं तो अराउंड 5 मिलियन फार्मर में से 3 मिलियन फार्मर जो है वो कॉटन के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हैं. एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इज द
second largest sectors of economy which earn 24% GDP for our country. Okay, so the next one is fertilizer industry. It is in any organic and inorganic material of natural and synthetic origins other than liming material that is added to a soil to supply one or more plants nutrients essential to the growth of plants. तो बेटा जैसे मैंने आपको बताया कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर है विच हेल्प टू अर्न द जीडीपी फॉर आवर इकोनॉमी फॉर आवर नेशन. तो इसमें जो सेकंड नंबर पे हमारी इंडस्ट्री आती है वो है फर्टिलाइजर्स. ये हमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक टाइप मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर द प्रोडक्शन और फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर प्लांट्स. ये हमें फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है. सो देयर आर सम मेजर कंपनीज which contribute to their efforts to earn more and more GDP for our economy. They are Fauji Fertilizer Limited, Angro Chemical Limited, Sitara Chemical Limited, and their contribution is about 14%, and their employment is 4.7 million. Okay, so the next one is cement industry. Cement industry is one of the most prominent and energetic organizations having operations and interaction with cement industry. पाकिस्तान में सीमेंट इंडस्ट्री भी बहुत प्रोमिनेंट है और बहुत एनर्जेटिक है ये ऑर्गेनाइजेशन. इसकी प्रोडक्टिविटी इसकी ऑपरेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे एंड इट इज़ प्लेइंग अ वेरी प्रोमिनेंट रोल in earning the GDP of our economy. Its achievements are as below. Pakistan is ranked 5th in the world cement export. ठीक है, तो पाकिस्तान की जो रैंकिंग होती है सीमेंट को एक्सपोर्ट करने वाले कंट्रीज में वो वर्ल्ड में 5th नंबर पे. पाकिस्तान एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 47% इन द लास्ट फिस्कल ईयर. ठीक है, और अब जो है पाकिस्तान की सीमेंट की एक्सपोर्ट 47% इंक्रीज हो गई है, अब अबाउट 50% इंक्रीज. ठीक है, 5th पोजीशन लीविंग जर्मनी बिहाइंड. ठीक है, जर्मनी के बाद जो है पाकिस्तान का रैंकिंग है. एक्सपोर्टेड $700 million इन द पास्ट ईयर. ओके, सो यहाँ पर पाकिस्तान ने जो है जो एक्सपोर्ट की थी लास्ट पास्ट ईयर तो $700 million तक की जो सीमेंट थी वो एक्सपोर्ट की. कॉन्ट्रीब्यूटेड 3.5% जीडीपी फॉर इकोनॉमी. और इकोनॉमी में जो है इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर अर्निंग द जीडीपी इट इज 3.5%. सीमेंट कंपनीज इन पाकिस्तान 23 सीमेंट कंपनीज हैं जिसमें से 4 जो है वो फॉरेन कंपनीज हैं, इंटरनेशनल कंपनीज हैं. 3 कंट्रोल्ड बाय द आर्म्ड फोर्स. ठीक है, 3 जो है वो आर्मी के फोर्सेस जो है उनके अंडर आती हैं एंड द रेस्ट ऑफ द 19 कंपनीज आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज शुगर इंडस्ट्री. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 there were only 2 sugar factories in Pakistan. Okay, at present there are 106 sugar mills operating in Pakistan. यानी कि हमें 1947 से अगर हम 2020 की बात करें तो यहाँ पर जो है हमारे पास 104 इंडस्ट्रीज 104 शुगर मिल्स के इंक्रीमेंट हुआ है और इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री आफ्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री. और ये कंसीडर होती है वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री कंसीडर होती है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद. ठीक है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज 0.7%. शुगर इंडस्ट्री जो है उसका कंट्रीब्यूशन जो है फॉर अर्निंग द जीडीपी इज 0.7%. जनरेट एम्प्लॉयमेंट अराउंड 1 million. ठीक है, और इनकी जो एम्प्लॉयमेंट जो रेट है इन्होंने जो जनरेट किया है वो 1 million की है. ठीक है, नाउ the next one is sport industries. Sports are all form of physical activity which though casual or organized participation aims at expressing or improving physical fitness and mental well-being, forming social relationships or obtaining results in competitions at all levels. ठीक है, तो ये जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज हैं वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा, और ये भी पाकिस्तान में सेटअप है और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा रहा है और फर्दर बिकॉज ये जो है आपकी फिटनेस और मेंटल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो इस चीज़ को आपके लिए बहुत आपके कंट्री में हमारी कंट्री में जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज को भी प्रमोट करें और इनकी प्रोडक्ट्स को भी जो है इजीली लोगों तक जो है अवेलेबल करें ताकि लोग इस
स्पोर्ट्स में इंगेज होकर अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को फिट रख सकें. So there are various types of goods related to the sports industry, which are footballs, cricket balls, hockey sticks, boxing gloves, volleyballs, swimming suits, golf balls, badminton rackets, and basketball. Sorry. So these are the products which are sport industries producing in our country. The next one is jute industry. There are 12 jute mills installed in the country with a production capacity of 1 to 7.9 thousand tons. At present, out of 12 industries units, only 10 units are functioning and producing 64,000 tons. ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है जो जूट इंडस्ट्री है, अगर हम देखें तो अब जाके इसकी जो प्रोडक्शन और ऑपरेशन कैपेसिटी है वो कम होती चली जा रही है. पहले 12 इंडस्ट्रियल यूनिट्स में से अब 10 इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो है वो फंक्शनिंग में है, ऑपरेशनल वर्क में है. इनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 127.9 थाउजेंड टन है, बट ये जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 67,000 टन. So it is very low, and they have to compete with their capacity, and they should produce more and more jute as their requirement, as we have required, and we must export it and earn our revenue. And in this way we can also manage our balance of payment, and we can also balance our balance of payment. Okay, so the next one is automobile industry. At present, there are 18 automobile manufacturing units which are involved in the assembling and manufacturing businesses. The composition of auto demand is dominated by motorcycles 60% and cars 22%. ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स 18 हैं. ठीक है, जो डिफरेंट काम कर रहे हैं, असेंबलिंग भी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं. और इनमें जो हमारी ऑटो डिमांड है वो मोटरसाइकिल्स की 60% है और कार्स की 22%. ठीक है. Now, further I want to discuss about the foreign direct investment. That what are the foreign direct investment? First of all, I would like to explain you about the foreign direct investment. बेटा foreign direct investment वो इन्वेस्टमेंट्स होती है जो आपको फॉरेनर्स जो हैं आपके कंट्री में करते हैं, यहाँ पर सेटअप करते हैं वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, और इस तरीके से आपके कंट्री में जो है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती हैं. लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अर्निंग करते हैं, इस तरह से अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करते हैं. ठीक है, सो देयर इज द इंसेंटिव्स टू फॉरेन इन्वेस्टर्स. क्वेश्चन इज दैट कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को क्या इंसेंटिव्स मिलते हैं कि वो आपकी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उनको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और क्या उनके लिए रिलैक्सेशन होती है. द फर्स्ट वन इज फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स हैव बीन रिलैक्स्ड फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स. ठीक है, तो क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो आपके कंट्री में फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनके लिए जो एक्सचेंज कंट्रोल्स होते हैं वो बनाए जाते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल्स, और उनको रिलैक्सेशन दी जाती है उसमें. ठीक है, तो उनको जो है फॉरेन एक्सचेंज में जो भी आपकी मनी की अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन होती है उसके लिए उनको स्पेशली रिलैक्स किया जाता है, उनको रिलैक्सेशन दी जाती है, क्योंकि वो आपकी कंट्री के लिए एक तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और आपकी कंट्री की बेटरमेंट के लिए वो पार्टिसिपेशन कर रहे हो. फॉरेन इन्वेस्टर्स आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन लोकल प्रोजेक्ट्स. फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो है लोकल प्रोजेक्ट्स में भी जो है पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाता है, और इसका रीज़न यही होता है कि उनके पास या तो बहुत ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होती है कंपैरेटिवली आपके अपने कंट्री के, और इसके अलावा उनके पास स्किलफुल लेबर ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली आपके अपने कंट्री. ठीक है, तो इस तरह से जब वो पार्टिसिपेट करते हैं लोकल प्रोजेक्ट्स में, और इस तरह से जब आपके लोकल प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अकम्प्लिश्ड होते हैं इन अ वेल मैनर और इन अ सक्सेसफुल मैनर, तो इस तरह से आपके अपने कंट्री को जो है वो बहुत ज़्यादा फायदा पहुँचता है. There is no need to obtain NOCs from the government anywhere in the country except the notified negative area. ठीक है, तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉरेनर्स तो उनको एनओसीज की कोई ज़रूरत नहीं होती कि वो गवर्नमेंट से जो है वो एनओसीज ले लें. नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स होते हैं ये, और वो कहीं पर भी जो है कंट्री में जो है अपने इन्वेस्टमेंट को करते हुए अपना फैक्ट्री सेटअप कर सकते हैं. ठीक है, लेकिन उन एरियाज के अलावा जहाँ पर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट किया होता है कि वहाँ कोई इंटरवीन नहीं कर सकता. ठीक है,
There are some importance of foreign direct investment. Number one is filling the saving and investment gap. ठीक है, तो बेटा फिलिंग दी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट गैप्स में बेटा आपके पास ये आता है कि आपकी कंट्री में अगर इन्वेस्टमेंट जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही क्योंकि आपकी सेविंग्स इतनी नहीं है, ठीक है। सो देयर इज अ गैप बिटवीन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कि लोगों की इनकम इतनी नहीं है कि वो इतना सेव कर सकें और आपको जितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए उतनी आप कर नहीं सकते क्योंकि आपकी सेविंग कम है। देयर इज द इन्वेस्टमेंट इज ग्रेटर देन द सेविंग, so the gap between them will be filled by the foreign direct investment, ठीक है। तो जो ये जो गैप होता है कि आपके अपने कंट्री में सेविंग्स इतनी नहीं है कि आप उन सेविंग्स को यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट करो, तो वो गैप जो होता है वो कौन फिल करता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फिल करती है। और इस तरह से फिर क्या होता है, जब आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट होगी बाय फॉरेनर्स, तो आपके यहाँ जब प्रोजेक्ट्स लगेंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट लेवल को इंक्रीज करना होगा। जब आपके यहाँ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी तो आपकी ऑटोमेटिकली जो है नेशनल इनकम भी इंक्रीज होगी और आपका स्टैंडर्ड लिविंग भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि अगर आपकी कंट्री में कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता है, कोई इंटरेस्टेड है तो कोई कंट्री, तो इट विल बी very fruitful for you for the investment purpose or for the productivity purpose, ठीक है। फिलिंग ट्रेड गैप, जो ट्रेड गैप्स होता है वो भी बहुत ज़्यादा फिल हो जाता है। जैसे कोई रिस्ट्रिक्शन है आपके कंट्री में कि आप अगर कहीं पर किसी अदर कंट्री से आप कोई काम करते हो, उनसे इंपोर्ट करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, तो इफ देयर इज लिवाइड एनी हैवी ड्यूटी और टैक्सेस, so if the foreigners invest in your own country directly, so it will also remove the gap between your trade, international trade, okay। so the next one is rising of revenue for development, ठीक है। अच्छा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किस तरह से आपके रेवेन्यू को राइज करता है कि आप डेवलप करो अपनी इकोनॉमी को, तो वो इसी तरह से करता है बेटा कि जब फॉरेनर्स आकर आउट ऑफ कंट्री से आपके कंट्री में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को सेटअप करते हैं, तो इस तरह से आपके कंट्री में जो है रेवेन्यू जनरेट होता है। किस तरीके से, जब वो उनकी इनकम इंक्रीज होगी बाय इन्वेस्टमेंट, तो दे हैव ऑल्सो पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, ठीक है। वो उस रेवेन्यू का जो उन्होंने अर्न किया होगा उसके लिए टैक्सेस भी पे करेंगे, और दैट टैक्सेस विल बी द रेवेन्यू फॉर योर गवर्नमेंट, ठीक है। तो क्या होगा, वो जब जो भी अर्न करेंगे उसका जो टैक्स पे करेंगे, तो वो टैक्स आपकी गवर्नमेंट का रेवेन्यू बन जाएगा, और फिर वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू गवर्नमेंट जो है अपनी डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए यूज कर सकती है इजीली, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज गैप इन मैनेजमेंट। बेटा एज यू नो कि आपको पता है कि जिस तरह से हमारे आउट ऑफ कंट्री जो फॉरेन कंट्रीज है, वहाँ पर जो मैनेजमेंट क्राइटेरिया है, जो टेक्नोलॉजी वहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हुई है, वो बहुत ज़्यादा जो है अनबीटेबल है, ठीक है। तो अगर ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो है टैलेंटेड मैनेजमेंट अगर आपकी कंट्री में आती है और वो आपकी कंट्री में आके अपने इन्वेस्टमेंट करती है इन द शेप ऑफ कैपिटल और इन द शेप ऑफ लेबर फोर्सेस, तो इस तरह से आपके गैप जो होता है मैनेजमेंट का वो भी फुलफिल होता है। माइट बी पॉसिबल यू डोंट नो अबाउट द efficient management system, and they will provide you that particular management system, so in this way you can fill the gap of management as well, okay। The next one is encouragement to the local enterprises. As I told you before that the foreigners have the extraordinary skills and they have the technology and they have the knowledge of technology as well, so they can be helpful for your local enterprises as well, ठीक है। किस तरीके से कि जब आपके लोकल एंटरप्रेन्योर्स देखेंगे कि किस तरीके से एक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुई आपकी कंट्री में और उन्होंने किन तरीकों को, किन वेज को यूज करते हुए जो है अपने बिजनेस को अचीव किया, उनमें प्रोडक्टिविटी लेवल को इंक्रीज किया, सो दैट यू कैन लुक दैट particular types or their criteria, and you should also adopt that particular criteria in your local enterprises, okay। and in this way you can encourage your local enterprises or you can increase your productivity level by viewing the way of that foreigners way of management, ठीक है। rise in production and employment, as I told you कि आप जो हो कभी भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है किसी भी कंट्री में, और जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि आपके यहाँ जो है
जब प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट होगी तो प्रोडक्टिविटी के लिए होगी, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो आपके पास क्या होगा, अल्टीमेटली आपको एम्प्लॉयर्स की ज़रूरत होगी, जब रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी इस तरीके से क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और नेशनल इनकम भी आपके कंट्री की इंक्रीज होगी, ठीक है। Now, there are इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, यहाँ पर कुछ इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं बेटा, आई ऑल्सो मस्ट वांट टू टॉक अबाउट इट। दे आर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पाकिस्तान, बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसको हम इन शॉर्ट फॉर्म IDBP कहते हैं, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, एंड हियर इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ इज PICIC. The next one is National Development Finance Corporation, and its abbreviation is NDFC. The National Investment Trust, NIT, Equity Participation Funds, EPF, and Bankers Equity Limited, BEL. Okay. Now I want to explain you each in detail. So first one is Industrial Development Bank of Pakistan. Industrial Development Bank of Pakistan is one of the Pakistan's oldest development financing institutions and was created with the primary objective of extending terms finance for investment in the manufacturing sector of the economy. Okay? Over the years, however, the bank has become an institution fostering the growth of small and medium enterprises in the rural, less developed regions of the country. तो ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान है बेटा, ये बेसिकली आपके जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को लोन्स प्रोवाइड करने के लिए, उनको फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए जो है वो डेवलप किया गया था। ये बहुत पुराना डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान का, जिसका बेसिक और प्राइमरी जो मोटिव था वो यही था कि वो जो है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को जो है फाइनेंस प्रोवाइड करे और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है। तो इस इन दिस वे वी कैन ऑल्सो इंक्रीज आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और वी कैन ऑल्सो डेवलप आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, ठीक है। नाउ द सेकंड वन इज पाकिस्तान इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन, व्हिच वी ऑल्सो कॉल्ड PICIC. It is the financial institution in Pakistan, one of the first development finance institution established with the World Bank Group assistance in 1957. ठीक है, तो ये पहला जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जो है असिस्टेंस के थ्रू जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया था, डेवलप किया गया था, जो कि 1957 में डेवलप हुआ था, ठीक है। In 2007, PICIC Commercial Bank was bought by Singapore-owned NIB Bank. Recently, NIB Bank has sold its 30% stakes to Saqib Burgess and Consortium Private Limited. ठीक है, तो हुआ ये कि फिर इस बैंक को 2007 में PICIC कमर्शियल बैंक को जो है वो सिंगापुर के एक ओनर ने जो है वो जो है टेक ओवर कर लिया और उस बैंक का नाम रख दिया अब NIB बैंक। आपने देखा होगा NIB बैंक अब बहुत ज़्यादा जो है वो रिसेंटली जो है वो नेम था, लेकिन अब जो है उस NIB बैंक के भी जो 30% जो शेयर्स थे वो साकिब बर्जीस ने जो है वो टेक ओवर कर लिए, ठीक है। दैट्स मीन कि NIB बैंक हैज द 70% शेयर्स of this particular financial institutions and 30% rest of the 30% is under the Saqib Burgess, ठीक है। Now the next one is National Development Finance Corporation. The National Development Finance Corporation, NDFC also stand for, was a corporation owned by the government of Pakistan with the original main purpose of providing financing to public enterprises. Later its objectives were expanded to also provide financing to private enterprises as well. तो ये जो नेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन था ये भी आपको प्रोवाइड कर रहा था फाइनेंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, सही है। लेटर इट्स ऑब्जेक्टिव वाज एक्सपेंडेड टू आल्सो प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू द प्राइवेट एंटरप्राइजेस एज वेल। फिर क्या हुआ बेटा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के अलावा इनका जो दूसरा मेनली ऑब्जेक्टिव बन गया वो ये बन गया कि ये अब प्राइवेट एंटरप्राइजेस को भी या प्राइवेटली एंटरप्रेन्योर्स को भी जो है वो फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने लगे। इट वाज क्रिएटेड इन 1973 थ्रू एन एक्ट पास्ड बाय पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान अंडर द प्रीमियरशिप ऑफ जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है। तो ये 1973 में जो है ये एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट के अंदर और जिसकी प्रीमियरशिप किसने की थी, जुल्फिकार अली भुट्टो ने की थी। It was amalgamated into the National Bank of Pakistan by the regimes of General Pervez Musharraf in 2001. उसके बाद ये जो है अमलगमेट हो गया नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ
और उस वक्त जो है दौर चल रहा था वो जनरल परवेज मुशर्रफ का चल रहा था, और द ईयर when it was amalgamated, it was 2001. The next is the National Investment Trust Limited. It is also the first asset management company of Pakistan, formed in 1962, had funds under the management of approximately 76.37 billion rupees, with around 54,978 units holders as on June 30th, 2020. Its distribution network comprises of 27 branches, investors facilitation centers at Karachi, and various authorized bank branches all over Pakistan. इसकी 27 ब्रांचेस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिससे वो जो है इन्वेस्टमेंट के लिए फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं। कराची में भी हैं और ओवरऑल पाकिस्तान की डिफरेंट ब्रांचेस में भी है जहां पर उसकी रिक्वायरमेंट है। Now the next one is Equity Participation Fund. The EBRD's Equity Participation Fund mobilizes funds from global institutional investors to take part in our own direct equity investments with the goal of attracting long-term institutional capital into the private sectors in the countries where we work. ठीक है, तो वो क्या करती हैं इक्विटी पार्टिसिपेशन फंड कि वो ओवरऑल डिफरेंट पूरे वर्ल्ड के इन्वेस्टर से जो है अमाउंट लेकर वो एक जगह इन्वेस्ट करती है, और फिर वो वहां पर जो है उसका गोल यही होता है कि वो लॉन्ग टर्म इंस्टीट्यूशनल कैपिटल में जो है वो इन्वेस्ट करें जहां से उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी मिले, और जिन लोगों से उन्होंने फंड्स लेके जो है वो मोबिलाइज किया है वहां पर वो उनको भी उसका रिटर्न दे सके। ठीक है, द लास्ट वन इज बैंकर्स इक्विटी लिमिटेड. So the Bankers Equity Limited started into operation in January 1980s. Bankers Equity Limited is a leading resource bank for the development in Pakistan. It has a strong capital base of rupees 334 million paid up capital. Okay. So Bankers Equity Limited is organized as a public limited company. It is sponsored by SBP, PBC एंड नेशनलाइज्ड कमर्शियल बैंक यानी नेशनल बैंक। तो इन्होंने इसको जो है वो जो है स्पॉन्सर्ड किया था। ओके, सो here are the another one details, which is the importance of industrial sectors in the economy. So I also want to explain it to you in detail. What are the importance of industrial sector in the economy? ठीक है, तो बेटा industrial sectors are very important in every country's economy for earning the GDP or for increasing the productivity level. Okay, so in Pakistani context, it is very important as well, and the first one is increase in national income. As I told you कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स होते हैं जब वो सेटअप होते हैं आपकी कंट्रीज में, तो वो आपके जितने नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इंक्रीज होंगे, प्रोजेक्ट्स इंक्रीज होंगे, तो दे विल आल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी लेवल, एंड फॉर द प्रोडक्टिविटी लेवल दे हैव द नीड ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, इन दिस वे वी कैन आल्सो इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एंड एज वेल एज when we will increase the production of goods and services, or we will export it as well, or we will meet the requirement of our own countries about the products and services, so we will also increase the GDP as well as our national income as well. ठीक है, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब बेटा आपकी इनकम इंक्रीज होगी, आपके यहाँ आपके कंट्री में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी और उनकी इनकम इंक्रीज हो रही होगी, तो इन दिस वे द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल आल्सो इंक्रीज. ठीक है, जब आपकी कंट्री में पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगा, लोग अपनी जो है बेसिक नीड्स के अलावा जो है और अपनी लाविश लाइफ को भी जो है वो फोकस कर रहे होंगे. क्यों कर रहे होंगे? क्योंकि उनके इनकम अर्निंग जो है वो अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा वो भी हाई होता चला जाएगा. ठीक है, द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी. ठीक है, so the economic stability is also very important in the perception of industrial sectors. ठीक है, जैसे मैं अभी पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो हमारी जीडीपी को बहुत ज्यादा जो है परसेंटेज अर्न करके दे रहा है.
ठीक है। इससे क्या हो रहा है, हमारी इकोनॉमी जो कि डाउनफॉल जा रही थी, अब वो स्टेबलाइज होना शुरू हुई है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी में जो है, जब हमारी इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, तो उससे हमारी इकोनॉमी में ना सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल हैं, बल्कि हम जो है अपने रिसोर्सेज जो वेस्ट कर देते थे उसको भी फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड इन दिस वे, इसके साथ साथ हम जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को भी जो है, या हमारा एम्प्लॉयमेंट जो लेवल है उसको भी हम फुली अचीव कर रहे हैं, या टू द सम एक्सटेंट हम इसको फुली अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। देन द इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरह से इम्प्रूव हो सकता है बेटा, व्हेन योर एक्सपोर्ट एक्सीड्स इट्स योर इम्पोर्ट। ठीक है, और आपकी एक्सपोर्ट उसी वक्त एक्सीड होगी जब आपके कंट्री में इंडस्ट्रीज जो होगी वो बहुत एफिशिएंटली वर्क कर रही होगी, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो लो कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रही होगी। इन दिस वे यू कैन एक्सपोर्ट योर गुड्स एंड सर्विसेज इन अ बल्क क्वांटिटी एंड यू विल जनरेट योर रेवेन्यू बाय योर एक्सपोर्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो जब आपकी एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होगी तो योर बैलेंस ऑफ पेमेंट विल ऑल्सो बिकम इम्प्रूव। ठीक है, now the next one is increase employment opportunities। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का मैंने बेटा आपको पहले भी बताया है कि जब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जब इंक्रीज होंगे, उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे, तो देयर इज ऑल्सो द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। जितना ज़्यादा आप प्रोडक्शन को अपने एक्सपेंड करोगे, आपको एम्प्लॉयज़ भी उतने ज़्यादा चाहिए होंगे, और इस तरह से आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हो जाएंगी। ठीक है, the next one is promotes specialization। it is very important factors which our country is not considered। ठीक है, स्पेशलाइजेशन बेटा आपने देखा होगा समटाइम्स कि हमारी कंट्री में जो लोग, जिनके पास जिस चीज की क्वालिफिकेशन है, स्किल्स है, डिग्री है, वो उसके अपोजिट चीजों पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल एक इंजीनियर है, उसकी अगर आप जॉब देखोगे तो वो अकाउंटेंट होगा। ठीक है, लेकिन उसने डिग्री जो इंजीनियरिंग की ली है, उसकी पूरी स्पेशलाइजेशन इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो हाउ कैन ही डज हिज अकाउंट्स वर्क इन अ वेल मैनर और इन अ प्रोफेशनल मैनर। ठीक है, तो इन दिस वे इट विल ऑल्सो डिस्करेज आवर प्रोडक्टिविटी लेवल और आवर फोरकास्टिंग लेवल। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, एक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करें, और लोगों को उनकी डेजिग्नेशन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड नॉलेज और कैपेसिटी दें। ठीक है, तो इन दिस वे वी विल ऑल्सो इंक्रीज आवर इंडस्ट्रियल सेक्टर्स और प्रमोट और मेक इट एफिशिएंट इन अ वेल मैनर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज राइज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। अगर आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर्स इंक्रीज होंगी डे बाय डे, अगर आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे जा रहा होगा, तो आपको रिक्वायरमेंट होगी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की एज वेल। ठीक है, इन दिस वे देयर विल ऑल्सो इंक्रीज द डिमांड ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एज वेल whenever your industrial sectors increases। ठीक है, लार्ज स्कोप ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। ठीक है, अच्छा, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के लिए इस एरा में जो है टेक्नोलॉजीज को जो है वो एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ योर कंट्री इज अ very advanced country and you have accepted technologies side by side, or your progress of technology is very well, so you will be achieve your industrial sectors in a well manner। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा कि इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में अगर आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन, आपके पास वो प्लांट्स हैं, वो इक्विपमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो इनोवेटिव हैं और बहुत यूनिक हैं, जो किसी अदर कंट्री के पास नहीं है, तो सो यू विल बी बिकम अ यूनिक कंट्री इन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स एज वेल। ठीक है, increasing saving and investment beta, it is also an important part of industrial sectors that you have to increase your saving and investment habit। ठीक है, अगर आपके पास इनकम बहुत हाई हो रही है, so you must save it and invest it in any other projects। it will also increase your country's national income as well as your productivity। ठीक है, इंक्रीज इन द गवर्नमेंट रेवेन्यू बेटा किस तरह से इंक्रीज हो सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जब आपके प्रोडक्शन सेक्टर्स इंक्रीज होंगे और वो जितना जनरेट करेंगे रेवेन्यू, तो दे हैव टू पे द टैक्स फॉर इट। ठीक है, जब वो अपने इनकम का टैक्स पे करेंगे
So ultimately जो है गवर्नमेंट अपना रेवेन्यू जो है बाय टैक्स कलेक्टिंग द टैक्स जो है वो जनरेट करेगी, और इन दिस वे द गवर्नमेंट विल यूज दिस रेवेन्यू इन द प्रोडक्शन और इन द प्रोडक्टिव वे और फॉर मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर और एनी अदर डेवलपमेंट प्रोग्रेस. ठीक है. So I am explaining you in detail that the importance of industrial sector in the economy, because it is very important in the examination point of view as well. And beta, I am stopping it right now and will continue in the next session. Hopefully, all these slides is clear to you. If you have any queries, so you can ask me in my WhatsApp number. Okay. Inshallah, I will meet with you in the next session with this same topic. Thank you so much. Allah Hafiz. Take care.